सो सो मुझे पोइट दिया गया था, एक अंग्रेजी पोइट, मिस्टर जोनाथन स्विफ्ट। आप लोगों ने जोनाथन स्विफ्ट के बारे में बहुत सुना होगा इन हिज नॉवेल्स कॉल्ड गलिवर ट्रैवल्स। ही was Irish by birth, and काफी मंजे हुए नॉवेलिस्ट थे, स्टोरी राइटर थे, एंड और I was very surprised when I saw that he also wrote poetries. By the way, सिफिलिस से याद आया, उनकी मौत सिफिलिस से हुई थी। सो जाहिर है काफी रंगीन मिजाज भी थे। और ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि being in the vicinity of English poets, him being Irish, he was not very well accepted in the English poetry society, but he could make his mark by a lot of his works. मैं उनका एक पोएम, टेरेंस ने मुझे कहा था पढ़ने के लिए, बट आई थिंक दैट इज वे टू लॉन्ग. आई हैव सिलेक्टेड अ डिफरेंट पोएम फ्रॉम poem of Jonathan Swift, and I would like to read the moral first, because of the paucity of the time. I think we should read the moral first, few lines, but lot of meaning inside that. और आजकल के लिए तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है. तो जोनाथन साहब अर्ज करते हैं कि rebukes are easy from our betters, from men of quality and letters. Rebukes are easy from our betters, from men of quality and letters, but when low dunces will affront, what man alive can stand the brunt? इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म हो, जैसे कि होनी भी चाहिए, वो तब अच्छी लगती है अगर वो आपके कैलिबर से ऊपर वाला कोई कर रहा हो आपको, और आपको उससे पॉजिटिविटी मिलता हो. तो रिब्यूक्स आर इजी फॉर आवर बेटर्स, फ्रॉम आवर बेटर्स, फ्रॉम मेन ऑफ क्वालिटी एंड लेटर्स. बट जो कि आज हो रहा है, बट व्हेन लो डंसेस विल अफ्रंट, डांस नहीं, डंस, DUNCE, व्हेन लो डंसेस विल अफ्रंट, मतलब जब बेवकूफों की सरदारी हो, दरअसल तो कौन सा होश वाला इंसान खड़ा रह सकता है उसके सामने, और क्यों ही खड़ा रहे. So basically what he's trying to say that when you elect a clown, expect a circus, nothing else. So that is what he's saying. The name of the poem is, by the way, The Sick Lion and the Ass. So I'll just read it fast. Okay. A lion sunk by time's decay, too feeble grown to hunt his prey, observed his fatal hour draw nigh. He drooped and laid him down to die. There came a chance a savage boar, who trembled oft to hear him roar. But when he saw him thus distressed, he tore and gored his royal breast. A bull came next, ungenerous foe, rejoiced to find him fallen so low. And with his horny armed head, he aimed at once. And with his horny armed head, he aimed at once to strike him dead. He strikes, he wounds, he shocks in vain. The lion still conceals his pain. At length, a base inglorious ass, who saw so many insults pass,
came up and kicked him in the side. 'Twas this that raised the lion's pride. He roused, and thus he spoke at length, for indignation gave him the strength. Thou sorry, stupid, sluggish creature, disgrace and shame and scorn of nature, you saw how well I could dispense with blows from beasts of consequence. They dignified the wounds they gave, for none complain who feel the brave. But you, the lowest of all brutes, how ill your face with courage suits, with what dullness in thy looks appear. I'd rather far, by heaven 'tis true, expire by these than live by you. A kick from thee is double death. I curse thee with my dying breath. इसका मतलब यह है कि एक लायन जो है, there's a lion sing, he is dying. When a lion is dying, even a donkey dares to beat him, but वो इंडिग्निटी वो सह नहीं पाता, एंड वो इंडिग्निटी इटसेल्फ उसको स्ट्रेंथ देता है. कभी कभी आपकी बेइज्जती होना, कभी, और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बीइंग इन द सेल्स फील्ड, आई अर्ज यू दैट कभी कभी अपनी बेइज्जती करवाओ, बहुत अच्छे से बेइज्जती करवाओ अपनी, क्योंकि वो बेइज्जती तुम्हें वो ताकत देगी जो इज्जत नहीं दे पाएगी. तो यहां पे वही है कि वो जो लायन मर रहा था, लेकिन वो गधे की जो लात है उसके लिए इतनी बेइज्जती थी कि ही स्टूड अप एंड ही गेव हिज डाइंग ब्लो टू द डोंकी, दैट साला मैं मर भी रहा हूं तो भी मैं शेर हूं. शेर बूढ़ा भी हो जाता है तो भी शेर होता है. सो दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इज दैट रिब्यूक्स आर इजी फ्रॉम आवर बेटर्स. लात घूसे हमारे जो अच्छे से उससे आनी चाहिए, फ्रॉम मेन ऑफ क्वालिटी एंड लेटर्स. बट व्हेन लो dunces will affront, what men alive can stand the brunt. सो जब जब अपनी बेइज्जती हो, और जब एक ऐसे इंसान से बेइज्जती हो जिसे तुम जानते हो कि वो इस लायक नहीं है, और वो बेइज्जती तुमको ज्यादा स्ट्रेंथ देगी, दैट विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ. And why, I mean, I'm just repeating myself, but this is of importance, that in the field of sales, what I have seen is, your failures are more than your success. Like if you are a teacher, 95% time you will be successful. If you are an engineer, 95% time you'll be successful. Doctors, most of them in their work are 90% or 95% successful, at least to achieve that. But sales is one thing where you will be broken every time you go. Out of 10 times, 9 times you will not be successful. There will be 90% of failure, and you will be broken down. And the people who will break you down are those people who actually are not more qualified than you, but they are customers and they will break you down. And a good salesman is whom that he takes up his broken pieces again, forms the energy again, with more vigor goes to the next opportunity and smiles at the door to be broken down again. So that thing is coming out from this poem, and that is why I selected this poem. I think my 3 minutes are up. Thank you.
I don't have much to say, but it was amazing to see Kalyan reciting a poem after so long. मतलब बहुत दिनों से हिंदी में और उर्दू में इन्होंने कविताएं सुनाई है हमें. After so many days, just brilliant. और the way he recited, बीच में वो बीस्ट मोड में आ जाते हैं. आपने नोटिस किया होगा, वो पढ़ रहे पोएट्री, उनकी पोम चल रही है, वो पढ़ रहे स्लो स्लो, अचानक से उत्तेजित होते हैं और फिर जो मजा आता है, मीटर बढ़ता है तो कल्याण भाई की आवाज भी बढ़ती है. तो आई जस्ट एंजॉयड इट एंड मतलब पता ही नहीं चला. शायद 4 साढ़े 4 मिनट बोला उन्होंने, पता ही नहीं चला. मुझे लग रहा था कि अभी कंटिन्यू करे तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो या लवली. मैं आई डोंट हैव मच टू ऐड. आई एंजॉयड इट वेरी मच एंड रियली बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली. क्रिटिसिज्म पे एक बहुत सही बात बोली कि क्रिटिसिज्म तब अच्छी लगती है जब कोई ऐसा दे जो देने के हकदार हो. मतलब लाइक कोई भी उठ के क्रिटिसाइज करेगा तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो बस रैंडम बातें हैं. है ना, वो कहते हैं ना कि जो ताकतवर है वो ही माफ करे तो अच्छा लगता है. कोई कोई भी उठ के बोल देगा कि जाओ तुमको माफ किया तो वैसी ही बात है क्रिटिसिज्म को. तो ये एक बहुत ही नोट करने वाली बात इन्होंने बोली. ओवरऑल आई लव्ड इट. आई थिंक आई थिंक ऐड तो कुछ नहीं करना है, बट मेरे मेरे एक्सपीरियंसेस का आई थिंक जिससे कोरिलेट करता है ये वो मैंने चूज किया. अ, मैंने मैंने टू बी वेरी फ्रैंक इन ऑल दिस 25 years of my my professional career, I have never judged, made a thorough judgment about myself. शायद वो वक्त ही नहीं मिला वो करने के लिए कि मैंने अच्छा काम किया बुरा काम किया. उसके लिए शायद मेरे पास वक्त ही नहीं था. मेरे पास बस यही था कि टारगेट्स थे और उनको अचीव करते रहना था. कभी होता था कभी नहीं होता था. और अपनी अपने और अपने परिवार की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना करना था. तो मेरे ख्याल से मैंने इतना क्लोजली अपने आप को जज नहीं किया. हाँ, अप्रेजल्स होते थे, लोग बोलते थे कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट है ये, बट मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया उस पर, टू बी वेरी फ्रैंक. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार मत ध्यान दो लोगों की बातों पर, क्योंकि ये जो चीजें है ना, अगर हम सभी बातों पे ध्यान देने लगेंगे ना तो हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाएंगे. यही चीज है. एंड इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप पे ध्यान दो. वो बहुत इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फलेसली सेल्फिश, and that will really help you. And thank you so much, Prabha, for understanding this. And but नसीहत नहीं है, बट ये एक सीख है जो मैंने सीखी अपने लाइफ से. तो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे लाइफ से हर एक आदमी अपने लाइफ से सीखता है कुछ. तो इतना साल तुम जिए, 45 years 46 years, सीखा गया तुमने. शायद यही मैंने सीखा कि मतलब डोंट बी जजमेंटल ऑन योर सेल्फ. दूसरों को तो करो ही मत और खुद को भी मत करो. जो भी हो रहा है वो होने दो. दैट्स इट. और मुझे तो वक्त ही नहीं मिला वो करने का भी. लाइक सोच के इंट्रोस्पेक्ट करो ऐसा. आई डेंट गेट द टाइम. हाँ, तो मेरा बस ये कहना था, ये पोएम जो है बहुत अच्छा है और आज के मतलब समाज का बहुत अच्छा मतलब दर्शाता भी है और एक बहुत अच्छा लेसन भी देता है. कैसे हम लोग इंसान पेंडुलम की तरह बनते जा रहे हैं. मतलब मतलब जब सोशल मीडिया में आते हैं तो इतने सारे ट्रोल्स होते हैं तो हम लोग सबको सीरियसली लेते हैं. तो तब उदास होते हैं. फिर जब लगता है कि ये लोगों का काम ही है बोलना, तो एक होता है कि हमारे मम्मी पापा भी जो अच्छी सलाह देने के लिए बोलते हैं या फिर बड़े जो रियल लाइफ में भी बोलते हैं, उनकी भी बातें गार्बेज लगने लगती है. तो वही है कि वो डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि किनका सुनना है और किनका नहीं. और दूसरा चीज है कि वो जो दूसरा पोएम था जिसमें लाइन वाला था,
वो वाला हम लोगों को ईगो का सिखाता है कि अगर इंसान में ईगो है ना तो वो आखिरी दम तक लड़ लेगा। तो थोड़ा ईगो भी होना चाहिए इंसान में। कि वो लायन को ईगो था ना कि मैं लायन हूँ, ये इसने मारा कैसे मुझे, तो आखिरी में मैं तो मरूंगा ठीक है लेकिन इसको भी मारूंगा। तो अच्छा लगा बहुत। मतलब अभी जिंदगी में इतना डोरमैट बन चुके हैं ना, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है पावरफुल। I think nothing to add. Thank you so much, Raise Your Voice. जोनाथन स्विफ्ट को मैंने एक्चुअली एज अ पोएट कभी पढ़ा ही नहीं है. This is the first time I'm having this good opportunity to read his poems, uh, because he's not known as a poet. If you must be knowing, he's mostly known for his essays and short stories. Um, but देखने वाली बात यह है कि उस जमाने के जो पोएट्स थे ना, पोएट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीटर, जो कि कार्तिकेय ने बताया खुशबू को. छंद हम जिसको बोलते हैं, छंद. ये जो छ, ये जो पोएट्री में छंद का जो प्रयोग है, राइम एंड मीटर का जो प्रयोग है, और उसमें एक बात कहना और एक गहरी बात कह देना in very few words in and in meter, that is the mark of a good poet, I would say, because poetry has its own grammar. It is not governed by that. It has its own grammar. It has its, it has it has its own liberties. बस छोटी सी एक बात कहनी थी कि अगर आप जोनाथन स्विफ्ट के प्रोस को पढ़ें और उनके पोएम्स को पढ़ें, तो you will feel that it is not the same person who is writing both of these things. When he writes his short stories, he's so the imagery is so good, and the way he stitches the story is so brilliant that it he stands out as an excellent writer. But when he's writing his poems, his brevity and his figures of speeches also hit the mark. So मेरे ख्याल से एक चीज मैंने डिस्कवर की, and I would like to thank Terence for that, to make me explore this guy nicely. Thank you. I just want to say that I'm enjoying listening. तो अगर मेरा नंबर पहले आता तो मैं कुछ कह देता, बट अब मुझे लग रहा है कुछ कहना नहीं चाहिए, बिकॉज सुन के आदमी सोचता है ना. लेकिन अगर पहले, कैन यू म्यूट योरसेल्फ वेदांत, वो थोड़ा शोर आ रहा है. हाँ. नाउ यू रियलाइज मैं क्या करते रहता हूँ. तो आह, कल्याण की बात सुन के मुझे लगता है कि आई थिंक प्रभव माइट अग्री कि ये, आई थिंक इट्स फेयर कि कल्याण कंप्लेन्स अबाउट द गवर्नमेंट. इट्स फेयर, क्योंकि अगर आप रोशन दिमाग होने के बावजूद, अगर आप देखो, सच्ची बात है, अगर हो सकता है कल्याण किसी और कंट्री में पैदा हुआ होता, मान लो आयरलैंड में पैदा हुआ होता, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में होता, वहाँ की सोशल सिक्योरिटी में होता, तो हो सकता है ही वुड हैव बीन सिटिंग इन अ बोट, जैसे कि वहाँ के कवि करते थे, एंड राइटिंग पोइट्री इन हिज फ्री टाइम एंड हैविंग फन. तो वी कांट ब्लेम हिम. आप चाहे वेदर यू आर अ मोदी वोटर, वेदर यू आर एंटी मोदी, इट डजंट मैटर. फैक्ट ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे रोशन दिमाग लोग जो हैं वो इंडिया में रह के स्ट्रगल करते हैं, एंड दे कुड हैव डन बेटर इफ दे वर अब्रॉड. मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपलसरी है, लेकिन एटलीस्ट इन सेशंस में आके हमारे दिमाग में विचार आता है. आप श्योर आपके दिमाग में भी आता होगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही
आत्मीयता से अपना नाता तोड़ दें, जो हमारी सोलफुलनेस है। तो इस पे विचार मुझे आ रहा है। हालाँकि ये पोएट्री से कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात जॉनथन स्विफ्ट की कविताओं की, तो मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि ही इज़ आल्सो अ सटायरिस्ट। तो प्रभव विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट। सटायर बहुत लिखते थे। गुलिवर ट्रैवल्स इन्हीं की किताब है, जो बहुत फेमस हुई है। एंड इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, जो छोटी भी हैं, एंड यू विल एन्जॉय रीडिंग देम। बट आई जस्ट थॉट के आई विल मेंशन दिस अबाउट, ताकि जिन लोगों को लगता भी है कि कल्याण हर चीज़ में पॉलिटिक्स को ले आते हैं, मे बी ही हैज़ अ पॉइंट। मे बी अ, जब आदमी अच्छा सोचता है, अच्छा लिख सकता है, टैलेंट होता है, उसका दिल तो करता होगा ना कि बेटर सिस्टम का हिस्सा होता मैं तो, है ना? So I just thought I'll say that. Thank you, Vedant. मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि आज आज के जमाने में आप जितने भी हिंदुस्तानियों के ऊपर सीना चौड़ा करके, पता नहीं 56 इंच का या 58 इंच का वटेवर चौड़ा करके उन पे प्राइड करते हैं, वो सारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बाहर है। नोट इट डाउन। और ये कोई गर्व की बात नहीं है। अमेरिका डज नॉट टेक प्राइड इन अमेरिकन्स हु आर आउटसाइड अमेरिका, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। England does not take pride in British who are having their investments in Dubai and staying in Dubai. No, they don't do that. हालांकि UK is fourth in buying real estate in Dubai. First is Russia, second is India, third is US, and fourth is UK. Now, they don't take pride in that, but we take pride. हम बोलते हैं, और हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा कॉमन सिस्टम बोलता है। हमारे नेता नेशनल टेलीविजन पे संसद में बैठ के सुंदर पिचाई की तारीफ करते हैं, सत्य नडेला की तारीफ करते हैं, इंदिरा नूई की तारीफ करते हैं, विक्रम कपूर की तारीफ करते हैं, सबीर भाटिया की तारीफ करते हैं। लेकिन वो ये चीज नहीं जानते कि वो ये तारीफ नहीं करते, वो अपने ही पांव पे जोर जोर से कुल्हाड़ियों से चोट कर रहे हैं, और ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, सुंदर भविष्य बनाना है, तो भारत छोड़ो। वो खुद बता रहे हैं आपको। मैं ये किसी जोक के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। ये एक इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपके पार्लियामेंट में सक्सेसफुल लोगों में उन लोगों की चर्चा हो जो हिंदुस्तानी ही नहीं है, दे डोंट हैव द इंडियन पासपोर्ट। एक तो ये, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोग आजकल, मतलब व्हाट्सएप में तो बहुत है ही, मेरे मुखालिफ जो है वो बहुत है ही, वो ये बोलते हैं कि यार तुम देशभक्ति को पॉलिटिक्स से अलग रखो। तो गोया एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। हमको ये 4th स्टैंडर्ड से पता है ये बात, इनको शायद ये भूल गए अभी जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अभी क्या करे, अभी स्टैंडर्ड वैंडर्ड तो कुछ रहा ही नहीं, बाल नरेंद्र पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया लोगों का। तो ये 4th स्टैंडर्ड से हमको पता है कि कंट्री के जो नाम है ना, कंट्री, स्टेट, बॉर्डर्स, ये सिर्फ पॉलिटिकल मैप में होता है। अगर आप फिजिकल मैप देखोगे तो उसमें आपको इंडिया नहीं दिखेगा, पाकिस्तान नहीं दिखेगा, अफगानिस्तान नहीं दिखेगा, उसमें गंगा यमुना दिखेगा आपको। इंडिया दिखता है पॉलिटिकल मैप में। सो यू कैन नॉट एलियनेट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्रॉम योर पेट्रियोटिज्म। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप 1500 सदी का इंडिया का मैप देखोगे तो वो दूसरा मैप दिखेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स आपके थाली में परोसे जाएंगे कि बी अ पेट्रियट, डोंट बी पॉलिटिकल। इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन ओनली बी पेट्रियट टू अ पॉलिटिकल एंटिटी। यू कैनॉट, अगर पॉलिटिकल मैप ही नहीं होगा तो बाउंड्रीज ही नहीं होगा, तो कहां की पेट्रियोटिज्म? घूमो
जानवरों की तरह, ऊंट की तरह, क्या प्रॉब्लम है? तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ. थैंक यू कार्तिकेय फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग दिस आउट. यस, यू आर राइट that and I'm sure if the situation goes on like this, I don't want somebody to become like me in future, because it creates a lot of problems when you know that you can deliver, but the system does not let you deliver. The system makes you a battery, uses you up like a battery. चाहे आप सरकारी नौकर हो या गैर सरकारी नौकर हो या बिजनेसमैन हो या कोई हो, इंडियन सिस्टम यूजेस यू अप लाइक अ बैटरी. और जिस दिन आपका पावर खत्म हुआ, आपको कहीं पे फेंक देता है साइड पे, आपका कोई रेलेवेंस नहीं रहता. ठीक है, पेंशन वेंशन कभी मिल जाती है इधर उधर, बट आपका कोई बेसिकली you are an expendable resource in your country which you should not be. That is what I'm trying to tell. और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे नेता भी बोल रहे हैं बाय द वे. ये अकेला मेरी राय नहीं है. अगर ये सिर्फ मेरी राय होती है तो चलो एक पागल, लेकिन सबकी राय ये है. अब सब तो पागल हो नहीं सकते. जी.